میں ایک رائٹر ہوں، پیشہ ور نہیں۔ پیشہ ور سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اپنی کہانیاں معاوضہ لے کر دے، بلکہ میں پیشہ ور رائٹر اس کو کہتا ہوں جو ادارے کے کہنے پر ان موضوعات پر کہانیاں لکھ دے جو اسے خود پسند نہ ہوں، مگر پیسوں کے عوض ان موضوعات پر لکھ دے۔ میں حقیقت پسند ہوں اور جانتا ہوں کہ کہانیاں ایسی لکھی ہونی چاہیے جنہیں عقل تسلیم کرتی ہو۔ ایسا ممکن ہے، ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے۔ بھوت پریت آصیب کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے جب میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں، پھر کیوں تسلیم کروں؟ جب میں انہیں تسلیم نہیں کرتا، اس لیے پھر میں کیوں ان پر فضول میں کہانیاں لکھوں؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح کا ادیب ہوں۔ ادیبوں کو ذرا سا پوائنٹ ملنا چاہیے، وہ بات کا افسانہ بنانے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ادیب ایسا نہ کرے تو پھر وہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ کہانیاں ہی اس کا روزی کا ذریعہ ہے۔ میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں کہ میری ایک سرکاری ادارے میں ملازمت ہے اور کہانیاں لکھنا میری مجبوری نہیں، شوق ہے۔ میں معاشرے میں ظلم و زیادتی دیکھتا ہوں، میرا قلم خود بخود ان برائیوں کے خلاف چلنے لگتا ہے۔ میرا تبادلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کر دیا گیا ہے۔ اس میں میری خوشی شامل نہیں بلکہ سزا کے طور پر کیا گیا تھا۔ میرے افسران کو میرا سچ بولنا پسند نہیں تھا۔ میں ہمیشہ مزدوروں کے حق میں بات کرتا تھا، جبکہ میرے افسران چاہتے تھے کہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ حالہ گاؤں میں ملازمت کو جاری رکھنے کے لیے رہائش کی ضرورت تھی۔ فوری مکان مل جانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے آفس کے ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ جب تک مکان کا بندوبست نہیں ہو جاتا، میں نے آفس میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آفس میں گھر جیسا سلوک نہیں تھا، مگر مجبوری تھی۔ میں اپنے افسران کی منت سماجت کر کے تبادلے کے احکامات منسوخ کرا سکتا تھا، مگر میں ایسا اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ پھر مجھے ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتی، جو میرے دل کو گوارا نہیں تھی۔ ایک ہفتہ گزر جانے پر بھی میرے لیے مکان کا بندوبست نہ ہونے پر میں اپنے اسسٹنٹ پر برس پڑا۔ تم گاؤں میں مقامی ہونے پر بھی میرے رہنے کے لیے ایک مکان کا بندوبست نہیں کر سکے؟ کیا بتاؤں سائیں، مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے۔ اتفاق سے ایک بھی کرائے کا مکان خالی نہیں ہے، اسسٹنٹ مہربان نے کہا۔ کیا ایک مکان بھی خالی نہیں ہے؟ اتنی بڑی آبادی کے گاؤں میں ایک مکان بھی کرائے پر نہیں مل سکتا، میں نے مایوسی سے کہا۔ ایک خالی مکان ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ مکان آپ کو دلاؤں۔ مہربان نظر نیچی کیے بولا۔ وہ کیوں؟ سائیں، وہ مکان آصیب زدہ ہے، اس میں کوئی بھی شخص 2 دن سے زیادہ نہیں ٹک سکتا۔ میں پھر جانتے بوجھتے کیوں وہ مکان دلاؤں؟ بس یہی بات ہے کہ وہ آصیب زدہ ہے۔ ہاں سائیں، یہی بات ہے۔ اس آصیب نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ بس وہ ڈراتا ہے مختلف روپ میں آ کر، نقصان ابھی تک کسی کو نہیں پہنچایا۔ مہربان سائیں، تمہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے آصیب پر بالکل یقین نہیں ہے۔ اسے میں انسانوں کا وہم تصور کرتا ہوں۔ ہم لوگ اندیکھی مخلوق سے خوف زدہ ہونا اور ڈرنا شروع کر دیتے۔ بقول تمہارے اس خالی گھر میں آصیب ہے، لیکن آج تک آصیب نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کیسا آصیب ہے؟ اور اس سے زیادہ وہ لوگ احمق ہیں۔ جب آصیب انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہا، پھر کرایہ دار کیوں مکان خالی کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں وہ واقعی ان کا نقصان نہ کر دے۔ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں آصیب ہوں، وہاں جن لوگوں نے بھی رہائش اختیار کی انہیں نقصان ہی ہوا ہے، مہربان نے کہا۔ میں بھی بچپن سے اپنے نہ جانے کتنے واقعات سنتا آ رہا ہوں، لیکن ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ تم ایسا کرو، مجھے وہ مکان کرائے پر دلا دو، میری بچپن سے آصیب کو دیکھنے کی خواہش پوری ہو جائے گی، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آصیب نے نقصان پہنچایا تو یہ میرا نصیب ہے، میں نے مسکراتے ہوئے مہربان کی طرف دیکھا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر میرے اصرار پر اس نے مجھے وہ آصیب زدہ مکان دلا ہی دیا۔ وہ پرانا کھنڈر نما مکان تھا، کسی کے استعمال میں نہیں رہنے کے سبب بے توجہی کا شکار تھا۔ مکان میں صفائی کا فقدان تھا، مکان بھی مرمت چاہ رہا تھا۔ میرا بھی کچھ نہیں پتہ تھا کہ سزا کا دورانیہ کتنا ہے۔ جب تک سزا پوری نہیں ہو جاتی مجھے اسی گاؤں میں رہنا تھا۔ مکان مل جانے پر میں اپنا مختصر سا سامان لے آیا۔ مہربان کی طرح میرے آفس کے دیگر ساتھیوں نے بھی مجھے اس مکان میں جانے سے روکا تھا، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی۔ مجھے بھی آصیب کا سن کر تجسس ہو گیا تھا کہ میں بھی دیکھوں آصیب کیسے ہوتے ہیں۔
और वो मुझे अकेले आदमी को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। रात को मैं सेन में ही चारपाई बिछा कर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा के झोंके लग रहे, मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। न जाने रात का वो कौन सा पहर था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरी चारपाई को धक्का दिया हो। बेइख्तियार मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, मगर सेन में कोई भी नहीं था। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद कलामी की। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, मगर नींद उड़ गई थी। मैंने पॉकेट से सिगरेट निकाल कर सुलगाई। सेन में नीम का कदावर दरख्त भी मौजूद था। मेरी बेइख्तियार नज़र दरख्त पर चली गई। दरख्त पर एक बंदर बैठा था। उसके हाथों में लड्डू थे, जबकि पाँव में घुंघरू बंधे थे। शायद वो किसी का पालतू था। मगर इस वक्त रात में दरख्त पर चढ़ा क्या कर रहा था और लड्डू क्यों लेकर आया था। मुझे सोच में गुम देखकर उसने गुस्से से मुझे देखते हुए दांत निकाल कर दिखाए। बंदर के दांत दूर से भी चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। चांद की रोशनी की सबब ही मैं बंदर को देख रहा था, वरना अंधेरे में दरख्त पर चढ़े हुए बंदर के दांत देखना तो दूर की बात है, उसे ही देखना मुश्किल है। मेरे किसी भी किस्म का रद्द अमल जाहिर ना करने पर वो चीखता चलाता वहाँ से भाग गया। सिगरेट ख़त्म हो जाने पर मैं भी दोबारा से चारपाई पर लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों ने दोबारा से नींद के आगोश में पहुंचा दिया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने ऑफिस के साथियों को रात में बंदर के दरख्त पर आने का वाक़या सुनाया। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये बंदर किसने पाला हुआ है, मैंने पूछा। गांव में तो किसी के पास भी बंदर नहीं है, मेहरबान ने बताया। कमाल है, फिर वो बंदर कहाँ से आ गया, मैंने कहा। वो ज़रूर आसेब है, बंदर की सूरत में डराने आया होगा, मेहरबान ने कहा। अच्छा, वो मुझे डराने आया था, फिर वो मुझसे डर कर क्यों भाग गया, मैंने कहा। ये उसकी तरफ से वार्निंग होगी। अच्छा, वो मुझे वार्निंग देने आया था कि मैं घर खाली कर दूं, मैं मुस्कुराया। न जाने तुम लोगों को कब अकल आएगी। ये इंसान का वहम ही होता है जो उसे खौफज़दा कर देता है, वरना आसेब का दुनिया में कोई वजूद नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा। वो मेरी बात पर कुछ बोले नहीं और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। शाम गए। जब ऑफिस से घर पहुंचा, आज मेरे जहन में एक कहानी का प्लाट आ गया था और मुझे आज उसे लिखना था, क्योंकि अमूमन मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरे जहन में कहानी का खाका आ जाए फिर उसे ना लिखूं तो फिर वो खाका मेरे जहन से निकल जाता है। रात हो जाने पर मैं सेन में कहानी लिखने के लिए कागज़ कलम संभाल कर बैठ गया। मैं अभी मुश्किल से 2 सफ़े ही लिख पाया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव के तलवों में कोई गुदगुदी कर रहा था। मैंने चौंक कर नीचे देखा। एक सफ़ेद रंग की बिल्ली थी, मेरे पाँव के तलवों पर अपना मुंह लगा रही थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वो मेरे पाँव के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। तुम भूखी हो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं कुर्सी से उठकर बावर्ची खाने की तरफ चलने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने दूध को एक खाली बर्तन में डाला और सेन में एक जगह रख कर बिल्ली को इस तरफ मुतवज्जा करने लगा। बिल्ली सेन में से ऐसे गायब थी जैसे वो आई ही नहीं हो। मैं वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कहानी मुकम्मल करने की धुन सवार थी। कहानी मुकम्मल होने पर ही मैंने कलम बंद किया। मैंने एक निगाह दूध के बर्तन पर डाली। बर्तन से दूध गायब था। इसका मतलब था कि बिल्ली खामोशी से आकर दूध पी गई थी। मैं कहानी लिखने में इतना मगन था कि उसके आने और जाने का पता ही नहीं चला। उस दिन से बिल्ली मुझसे मानूस हो गई थी। वो रोज़ाना घर में आने लगी थी। मैं बर्तन में दूध डाल देता और वो दूध पी कर चली जाती। मुझे इस घर में आए 10 दिन हो चुके थे। मुझे किसी आसेब ने तंग नहीं किया था, जिसका मतलब यही था कि इस घर में आसेब का वजूद ही नहीं है। लोगों ने ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। मुमकिन है इस मालिक मकान के महल्ले वालों से ताल्लुकात अच्छे ना हों और महल्ले के लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाने को मकान के बारे में मशहूर कर दिया हो कि ये आसेब ज़दा है, ताकि कोई भी किराएदार ना आए, और जो आए वो इसे इतना डरा देते होंगे कि वो वहम में मुब्तला होकर हर गैर मामूली बात को आसेब समझते बैठते हों। ये बात मेरे जहन में इसलिए आई कि हमारे महल्ले में एक खाली मकान था। गर्मी के दिनों में उसमें बुज़ुर्ग और बच्चे शाम से रात गए तक बैठ जाया करते थे। गर्मी के दिनों में मैदान में हवा बहुत अच्छी आती थी, इसलिए गर्मी की सताए अपने जिस्म को ठंडा करने को वहाँ आ जाते थे। एक शाम मैंने सुना कि मैदान में आसेब आ गया है। मुझे हैरत और तजस्सुस भी हुआ कि अचानक मैदान में आसेब कैसे आ गया।
आसेब की खबर से वहाँ शाम में आने वालों ने वहाँ का रुख करना बंद कर दिया था। बच्चे भी रात में वहाँ से जाने के लिए कतराने लगे थे। एक शाम मेरी मुलाकात जहांज़ेब से हुई। वो मैदान की तरफ आ रहा था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ भाई, यहाँ कैसे आ रहे हो? मैं काम से गया था, वो बोला। मैदान में सन्नाटा है, आसेब का राज हो गया है, मैंने कहा। हाँ भाई, ये हकीकत है। वहाँ अचानक से आसेब आ गया है, वो नज़र भी नहीं आता। मेरे सामने की बात है कि अचानक से काशिफ के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा। उसका गाल भी सुर्ख हो गया था। हो सकता है किसी मच्छर ने काट लिया हो जिससे गाल सुर्ख हो गया हो, मैंने कहा। यार, तुम हर बात को मजाक में ले जाते हो। दरख्त की शाखों को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था और उसे तुम मच्छर कह रहे हो, वो बोला। मुझे दाल में काला नज़र आ रहा है। लोग आसेब की वजह से मैदान में जाने से कतरा रहे हैं और तुम मैदान से आ रहे हो। मैंने कब कहा मैं मैदान में गया था? मैदान के पास से कई गलियां निकल आ रही हैं। इन गलियों से आने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं मैदान से आ रहा हूँ। जहांज़ेब ने मुंह बना लिया। जहांज़ेब, काशिफ, नज़ीर, वकार, ये शरारती टोला था। बचपन में भी इनकी शरारतें बहुत मशहूर थीं और अब भी ये ग्रुप शरारतों के हवाले से मशहूर था। आए दिन लोगों को तंग करना इनका महबूब मशगला था। सच्ची बात यह थी कि मुझे जहांज़ेब की बात सुनकर शक पैदा हो गया था कि ज़रूर आसेब की आड़ में इन्हीं का ग्रुप का हाथ है। अभी मुश्किल से एक माह भी नहीं गुजरा था कि रात मैं दूध लेने को घर से निकला था कि मैदान के करीब से गुजरते हुए मुझे मैदान से शोर शराब की आवाज़ सुनाई दी। मुझे तजस्सुस हुआ कि देखूं क्या माजरा है। मैदान में महल्ले के लोग जमा थे और जहांज़ेब ग्रुप की पिटाई लग रही थी। मालूम करने पर पता चला कि मैदान के सामने चंद घर थे। इन घरानों की लड़कियों से इश्क या चक्कर चलाने से उन्होंने आसेब का ड्रामा रचा रखा था। मैदान में बड़ों और बच्चों की मौजूदगी में उनका इश्क या चक्कर नहीं चल सकता था। बुज़ुर्गों को गर्मियों में मैदान में बैठने की आदत थी। जब उन्होंने इस ग्रुप को मैदान में मुसलसल जाता देखा तो वो समझ गए कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। आसेब मशहूर करने वाले खुद मैदान में क्या करने जाते हैं। दो बुज़ुर्गों ने रात में तारीकी का फ़ायदा उठाकर उनकी जासूसी शुरू कर दी और इस दिन वो दोनों बुज़ुर्ग झाड़ियों के पीछे उनकी जासूसी कर रहे थे। उन्हें इसकी खबर नहीं थी। ऐसे में काशिफ बोला, देखो हमारी तरकीब कितनी शानदार रही। हाँ भाई, लोगों को भगाने के लिए आसेब का ड्रामा बहुत कामयाब साबित हुआ है, जहांज़ेब ने कहा। देख लो कितने पुरसुकून अंदाज में हमारा इश्क का चक्कर चल रहा है। मैदान में कोई रुकावट नहीं है, नज़ीर ने कहा। हाँ भाई, लोगों की मौजूदगी में हमारा इश्क का चक्कर किस तरह चल सकता था। देख लो किस तरह सामने के घर की लड़कियां चलती फिरती नज़र आ रही हैं। कभी ना कभी इनसे हमारी बातचीत भी हो जाएगी, वकार ने कहा। हाँ भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है, जहांज़ेब ने हंसते हुए कहा। उनकी गुफ्तगू सुनकर दोनों बुज़ुर्गों सुलेमान और लुकमान से बर्दाश्त न हो सका और उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दी। उनका शोर सुनकर घरों से लोग निकल आए और उनकी असल बात का सुनकर वो भी उनकी दुर्गत बनाने लगे। मैं जब भी कहीं आसेब के बारे में सुनता हूँ तो जहांज़ेब ग्रुप का वाक़या याद आ जाता है। रात को मैं सो रहा था कि अचानक किसी लड़की की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर मैं नींद से हड़बड़ा कर उठ गया। आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं तेज़ी से कमरे की जानिब लपका। कमरे में कोई भी नहीं था। आवाज़ बदस्तूर कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं हैरत ज़दा होकर कमरे में देख रहा था कि कमरे में कोई भी नहीं। फिर यह आवाज़ कैसी है? इस आवाज़ में बड़ा ही दर्द था। मैं कमरे में घूम फिर कर आवाज़ की सिमत का तयन करने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। लड़की की आवाज़ एक कोने से आ रही थी। मैं जब कोने में जाकर खड़ा हुआ तो आवाज़ ज़मीन की तह से आती महसूस हुई। मैं बड़ा हैरान और परेशान हो रहा था कि कमरे में कोई भी नहीं है और ज़मीन के अंदर से लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है। इलाही, ये क्या माजरा है। दिल में खौफ भी महसूस हो रहा था कि कहीं ये आसेब का चक्कर ना हो। मैं आसेब को नहीं मानता था, मगर मैं इस हकीकत को भी नहीं जुटला सकता था कि लड़की के दर्द में डूबी आवाज़ ज़मीन की तह से आ रही है। खासी देर आवाज़ आती रहने के बाद खुद ब खुद बंद हो गई। मैं भी आवाज़ बंद हो जाने पर बिस्तर पर लेट गया। पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजर गई। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह हो गई, नींद नहीं आई। ऑफिस पहुंचकर दिल ने चाहा कि रात जो मुझ पर गुजरी है वो उन्हें बताऊं, मगर ये सोचकर खामोश रहा कि ऑफिस वाले मेरा ही मजाक उड़ाएंगे।
میں نے ہی ان کے سامنے آصف کی وجود سے انکار کیا تھا۔ مجھے گھر پر کام تھا، اس لیے 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے شہر آ گیا۔ میں کاموں میں ایسا پھنسا کہ میرا ذہن ہی آصف والی بات کی طرف نہیں گیا۔ بیگم کو میرے گھر سے دور رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ میں افسران سے بات کر کے اپنے شہر میں تبادلہ کرا لوں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ بیگم، یہ اتنا آسان نہیں۔ کیوں آسان نہیں ہے؟ اس لیے کہ جن افسران کو میرا تبادلہ کرنا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں اور مجھ سے ان کی خواہش خوشامد نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، افسران کے تبادلے ہر سال 2 سال کے بعد ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے تبادلے کسی اور شہر میں ہوئے، میں نئے آنے والے افسران سے بات کر کے اپنا تبادلہ کرا لوں گا۔ جب افسران سے بات چیت کر کے تبادلہ ہو سکتا ہے تو پھر موجودہ افسران سے کیوں بات چیت نہیں ہو سکتی؟ بیگم نے کہا، بات انا کی ہے۔ میں کسی بھی صورت نہیں چاہتا ہوں کہ میری انا مجروح ہو۔ میں نے کہا۔ بیگم میری بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ میں ضدی طبیعت واقع ہوا ہوں، جو فیصلہ کر لوں پھر اسے واپس نہیں لیتا۔ چھٹیاں ختم ہو جانے پر میں پھر کرائے کے مکان میں تھا۔ رات میں سفر کی تھکن سے میرا برا حال تھا، اس لیے میں جیسے ہی کمرے میں بچھی چارپائی پر آرام کرنے کو لیٹا، نیند آ گئی۔ بے سدھ سو گیا۔ چارپائی کے ہلنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو جانے پر میں گھبرا گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار میری نظریں دیوار پر ٹک گئیں۔ ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سایہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دل ابھی سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل پڑے گا۔ سائے کو غور سے دیکھنے پر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ سائے کی اشارہ کٹی ہوئی تھی اور سرخ خون اس میں سے بہہ رہا تھا۔ وہ سایہ میرے اور نزدیک آیا۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، میرا اپنا تھا۔ چہرے پر بڑا کرب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا شارک کٹنے پر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کبھی خود کو اور کبھی سائے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک سایہ مجھ سے مخاطب ہوا، بھاگ جاؤ ورنہ دیکھ تیرا انجام یہ ہوگا۔ بھاگ جانے میں تیرے لیے عافیت ہے، سوچ لے ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سایہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ کمرے میں میاؤں کی آواز سن کر میں چونکا۔ سفید بلی دروازہ کھلا رہ جانے پر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں ایسا بے سدھ پڑا تھا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ بلی کو دودھ دینا ہے۔ میرا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے چارپائی سے اٹھ کر پہلے بلی کو دودھ دیا اور خود پانی پی کر پیاس بجھائی۔ میں اس وقت واقعی بہت خوف زدہ تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ تھوڑا اور صبر کر لینے پر شاید کوئی اور دوسرا مکان مل جاتا۔ سونے کے لیے آفس بھی کوئی بری جگہ نہیں تھی۔ جب چوکیدار آفس میں سو سکتا ہے پھر میرے وہاں سونے پر کیا قباحت تھی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگائی اور پینے لگا۔ 1 2 3 غرض کئی سگریٹ پی گیا۔ میں سگریٹ پینے کا عادی ضرور تھا، لیکن ایک وقت میں اتنی زیادہ سگریٹ نہیں پیتا تھا جتنی آج پی گیا تھا۔ سگریٹ پینے کا ایک فائدہ ہوا کہ میرے ذہن پر جو خوف کے سبب دباؤ تھا وہ کم ہو گیا۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹا نیند نے آ لیا، پھر صبح ہونے پر ہی آنکھ کھلی۔ بیدار ہونے پر مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ رات آصف نے مجھے گھر خالی کرنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ میرے گھر خالی کر دینے پر دفتر میں بڑی سبکی ہوئی۔ مجھے اس مسئلے کا حل اس طرح نکالنا تھا کہ گھر خالی بھی کر دوں اور میری بےعزتی بھی نہ ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دفتر کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، مجھے اور کتنے دن آصفی مکان میں رہنا پڑے گا؟ کیا آصف نے ڈرانا شروع کر دیا ہے؟ مہربان زیر لب مسکرایا۔ میری آصف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آصف سے ملاقات ہو مکان خالی کر دوں۔ میں نے بات بنائی، سائیں میرا مشورہ ہے کہ جب تک آصف تنگ نہ کرے مکان میں رہتے رہیں۔ جب وہ گھر خالی کرنے کو کہے تو اسے کہہ دینا کہ کرائے کا مکان دلا دو، میں تمہارا مکان خالی کر دوں گا۔ مہربان نے کہا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ اس طرف میرا ذہن گیا ہی نہیں۔ میرے ساتھیوں کو آصف کی دھمکی دینے پر وہ میرا ہی مذاق اڑاتے کہ تم آصف کو مانتے ہی نہیں ہو، پھر کیسے آصف سے ڈر رہے ہو؟ مہربان کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی اور مجھے یہی کرنا تھا۔ رات کو میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ مجھے آصف سے بات کرنی ہے۔
पूरी रात खैरियत से गुजर गई। आसेब ने मुझे परेशान नहीं किया। अभी फजर की नमाज़ होने में वक्त था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लड़की बड़े दर्द भरी आवाज़ में रो रही हो। रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मेरी चारपाई से कुछ फासले पर एक हिंदू लड़की खड़ी रो रही थी। उसके पास ही बैठी एक हिंदू औरत सीना कुबी कर रही थी। उन्हें सेन में देखकर मुझे सख्त हैरत हो रही थी। वो किस तरह से घर के अंदर दाखिल हो गईं। बाहर का दरवाज़ा भी बंद था। मैंने ज़रा हिम्मत से काम लिया और उनसे बात करने का सोचकर उनसे मुखातिब हुआ। कौन हो तुम? हम भटकती हुई आत्माएं हैं और तुमने इस मकान में आकर हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है। मैंने किस तरह तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दिया? मैंने पूछा। हमें ज़िंदा मर्दों से सख्त नफ़रत है और जब किराएदार इस मकान में रहने आते हैं तो हमें शदीद गुस्सा आता है और हमें इन्हें डराने के लिए मुख्तलिफ़ रूप बदल बदल कर उनके सामने आना पड़ता है ताकि वो किसी तरह डर कर मकान खाली कर दें और हमें उनकी सूरतें देख देख कर गुस्सा ना आए। इसका मतलब है कि तुमने किराएदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा जब भी किराएदार इस मकान में टिकते नहीं हैं। मैंने कहा, हम आत्माएं भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? हम सिर्फ इंसानी नफ्सियात से खेलती हैं और उन्हें डराती हैं, और अगर इंसान को किसी किस्म का नुकसान हो जाए या वो हमारी बदली हुई सूरत देखकर खौफजदा होकर किसी चीज़ से टकराए या गिर जाए तो वो समझता है कि उसे हमने नुकसान पहुंचाया है। जैसे हम तुम्हें कई दिन से डरा रहे हैं मगर तुम सख्त दिल हो, डरते नहीं हो। वो औरत बोली, मेरे जहन में भी यही बात है कि आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम मर्दों पर इतना क्यों खफा हो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, जालिम मर्दों ने ही हमें इस हाल पर पहुंचाया है। वो कैसे? मेरे पति के इंतकाल पर घर की जिम्मेदारी का बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। मैंने मुख्तलिफ़ घरों में मासी का काम संभाल लिया था। इस काम से घर का गुजारा चल रहा था। पहनने को पुराने कपड़े मिल जाते थे। सावित्री मेरा सब कुछ थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी शादी की फ़िक्र मुझे खाई जा रही थी। जहेज़ में देने को कुछ भी जमा नहीं था। मेरे पास जो ज़ेवरात थे वो मेरे पति की बीमारी पर लग गए। अब मेरी यही कोशिश थी कि मेरी बेटी सावित्री के जवान होने से पहले पहले जहेज़ के नाम पर कुछ सामान जमा कर लूँ। बेटी की फ़रज से इंसान जितना जल्द फारिग हो जाए इतना ही अच्छा होता है। मुझे क्या खबर थी कि किस्मत मेरे साथ कुछ और ही खेल खेलने वाली है। मैंने कुछ रकम जमा हो जाने पर चंद बकरियां खरीदीं और उनका दूध बेच देती थी। दूध की आमदन में आने वाली रकम जमा करने लगी थी ताकि जहेज़ की तैयारी में इस रकम से मदद मिल सके। इन बकरियों को घास चराने को सावित्री जंगल में ले जाती और शाम गए बकरियों को वापस ले आती। सावित्री के कद निकालने से वो बड़ी बड़ी लगने लगी थी। मुझे सावित्री ने बताया कि गांव के लड़के उसे छेड़ते और मखसूस किस्म के इशारे भी करते हैं। सावित्री नासमझ थी और मैं समझ गई कि उन मखसूस किस्म के इशारों का क्या मतलब है, वो क्या चाहते हैं। मैंने सावित्री को बकरियां जंगल ले जाने से रोक दिया। बकरियों के लिए चारा मैं खुद जंगल से लाने लगी थी। जब गांव के लड़कों ने देखा कि सावित्री बकरियां चराने जंगल में नहीं आ रही है तो उन्होंने गली के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। अक्सर वो घर में पत्थर फेंक जाते। मैंने जब उन्हें डांटा तो उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे कि सावित्री उन्हें खुद बुलाती है। हमें डांटने की बजाय अपनी बेटी को समझाओ। ये वही बात थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके बुज़ुर्गों को बताने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो भी कसूरवार मेरी बेटी को ही ठहराने लगे। नाचार मजबूर होकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि पत्थरों से सर टकराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं घर से निकलते हुए दरवाजे को ताला लगाकर जाने लगी थी ताकि मेरे पीछे से कोई धोखे से दरवाज़ा खुलवाकर सावित्री को नुकसान न पहुंचा दे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जितना भी एहतियात कर रही हूँ यह सब धरा रह जाएगा। वो रात हमारे लिए बड़ी ही दर्दनाक रात थी। गर्मी के दिन थे। मैं और सावित्री सेन में खुले आसमान तले गहरी नींद के मज़े ले रही थी कि चंद लड़के घर में कूद गए। मुझे होश जब आया जब वो मुझे रस्सियों से चारपाई पर बांध रहे थे। नींद से बेदार हो जाने पर जब मैंने बोलना चाहा तो उन्होंने मेरे मुंह में रुमाल ठोंस दिया। मुझे उन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं मुज़ाहमत करती। वो सावित्री को घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गए। ना जाने कितनी देर तक वो उसे नोचते और बम्बोड़ते रहे। उसकी हल्की हल्की चीखें मुझे सुनाई दे रही थीं। मैं उस रात की तारीकी के भेड़ियों से अपनी बच्ची को बचा ना सकी।
फिर सावित्री की चीखें आना बंद हो गईं। शायद वो बेहोश हो गई थी। नशे में मदहोश उन लड़कों ने जब ये बताया कि सावित्री हर किस्म की तकलीफ़ से निजात पा गई है तो मुझे झटका लगा। मैं बोल कुछ नहीं सकती थी। वो मुझसे बात करना चाहते थे, इसलिए मेरे मुंह से रुमाल निकाल दिया और रस्सियाँ भी खोल दी। मैं दौड़कर कमरे में गई। सावित्री बेसुध पड़ी थी। मैं गुस्से से चीखी, जलील लड़कों, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी बेटी कुछ बोल क्यों नहीं रही? हमारी बात गौर से सुनो। तुम्हारी लड़की दुनिया के सब दुख दर्द से आज़ाद हो चुकी है, मतलब ये दुनिया छोड़ गई है। क्या? मेरी मुंह से चीख निकल गई। ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है औरत। अगर तुमने हमारे मुताल्लिक़ किसी को कुछ बताया तो समझ लो फिर तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए अगर ज़िंदगी प्यारी है तो अपनी ज़बान को बंद रखना। कह देना कि लड़की की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी और वो फ़ौरन ही मर गई। ये कहते हुए वो बाहर जाने को लपके। बेटी के मर जाने का सुनकर किसको होश रहता है? मैं गुस्से में भरी उनको मारने को दौड़ी। उसी वक़्त मेरे हाथ में एक ईंट आई तो मैंने वो एक लड़के को दे मारी। ईंट उसके सर पर लगी। वो चकरा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके साथियों ने जो ये मंजर देखा वो गुस्से में मेरी तरफ लपके। उनके पास खंजर थे। खंजरों के पै दर पै वार करके मुझे ज़ख्मी कर दिया और मेरे बेसुध होने पर उन्हें होश आ गया और उनमें से एक बोला, अब क्या करें? भाग चलो। दूसरा बोला, बेवकूफ़, ये एक कत्ल नहीं 2 कत्ल हुए हैं, कहीं पुलिस तफ्तीश करती हुई हम तक ना पहुंच जाए। तीसरा बोला, हमें इनकी लाशें छुपा देनी चाहिए, अभी रात बहुत बाकी है। पहला बोला। इसकी बातों पर सब ने इत्तेफाक किया और उन्होंने कमरे में गड्ढा खोदकर सावित्री और मेरी लाश को दफन कर दिया। ये काम करके वो फरार हो गए। घर का दरवाज़ा वो खोल कर गए थे, इसलिए किसी का जहन भी इस तरफ नहीं गया कि हमें कत्ल करके घर में ही दफन कर दिया गया है। महल्ले वालों की तरफ से हमारी पुरअसरार गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने पर पुलिस ने रस्मी कार्रवाई करके मुकदमे की फ़ाइल बंद कर दी। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि उन आवारा लड़कों ने घर पर कब्ज़ा करने की गरज से घर में आना शुरू कर दिया और उनका घर पर कब्ज़ा करके अय्याशी करने का प्रोग्राम था। हमारी आत्माएं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थीं। चूँकि हमें हमारी रस्मात किए बगैर दफन किया गया था, इसलिए हमारी आत्माएं भटक रही थीं। हम माँ बेटी उनके जुल्म का शिकार हुई थीं, इसलिए ये किस तरह बर्दाश्त करती कि वो हमारे ही घर में अय्याशी करें। इसलिए हमने उन्हें डराना शुरू कर दिया। वो घबरा गए और फिर इधर उधर का रुख नहीं क्या खाली घर देखकर पड़ोसियों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। उन्हें भी हमने तंग किया, इसलिए उन्होंने घर पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए घर को किराए पर देना शुरू कर दिया। हर किराएदार इस घर को आसेब ज़दा समझकर भागने लगा और फिर एक दिन आया कि कोई भी किराएदार इस घर में आने को तैयार नहीं होता था। हम जो चाहते थे वो मकसद पूरा हो गया था। जिन लड़कों ने हमारे साथ जुल्म किया था वो भी जहरीली शराब पीने से हलाक हो गए थे। इस दिन हमें मर्दों से जो नफ़रत हुई है इसमें कोई कमी नहीं आई है। हमें इस घर में मर्दों का वजूद पसंद नहीं है। तुम्हारे आने से हमने ये ही सोचा था कि तुम भी आसेबी चक्कर समझकर घर से भाग जाओगे, मगर ऐसा लगता है कि तुम्हें आसेब पर यकीन नहीं है या फिर आसेब से डरते नहीं हो। तुमने ठीक ही कहा है कि मुझे वाकई आसेब पर यकीन नहीं था, लेकिन इस घर में आने के बाद यकीन आ गया है कि दुनिया में आसेब का वजूद है। मैंने कहा, तुम फिर यहाँ से भागते क्यों नहीं? वो बोली, मुझे किराए का कोई मकान नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। तुम्हें इस घर से जाना होगा, वरना। ये कहते कहते वो रुक गई। वरना क्या? मैंने मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देखा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसका तुमने खुद एतराफ़ भी कर लिया है। वैसे भी तुम्हारे साथ जिन लोगों ने जुल्म किया वो जहरीली शराब पर पी कर हलाक हो चुके हैं, फिर तुम क्यों दूसरे लोगों मर्दों से नफ़रत करती हो? मैंने कहा, इसलिए कि हम पर मर्दों ने ही जुल्म किया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दूसरे मुर्दों की तरह सुकून की नींद सो जाओ? हाँ, हो सकता है, अगर हमारे ढांचों को ज़मीन से निकाल कर हमारी रसूमात पूरी कर दी जाएं। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी रसूमात पूरी कर देता हूँ। मैंने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। वो गुस्से से बोली, मुझे कौन रोकेगा? मैं भी गुस्से में आ गया। मेरा गुस्से में आना बजा था। जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की थी वो खुद अपने अंजाम को पहुंच चुके थे, फिर वो दूसरे लोगों को घर में क्यों नहीं रहने देना चाहती थी?
दूसरों ने उनका क्या बिगाड़ा था। मेरा भी कुछ पता नहीं था कि मैं इस गांव में कब तक रहूं और इस किराए के मकान से अच्छा मकान कहाँ मिल सकता था। उन दोनों माँ बेटी को सुकून की नींद सुलाना ज़रूरी हो गया था। पेश इमाम और महल्ले के लोगों के मशवरे से उन दोनों माँ बेटी के ढांचों को ज़मीन से निकाल कर चिता के सुपुर्द कर दिया गया। इलाके के लोग मुझसे खुश हो गए थे। मैंने दो काम कर दिए थे। पहला काम उन दोनों माँ बेटी की पुरस्कार गुमशुदगी का राह से पर्दा उठा दिया था और दूसरा काम इस घर से आसेब का खात्मा ख़त्म कर दिया था। मैं भी खुश और मुतमईन था कि मैंने जो काम किया है उसके नतीजे में इस मकान में सुकून से रहूँगा। जब तक मेरा तबादला किसी शहर में नहीं हो जाता मुझे कोई दूसरा मकान किराए के मकान ढूंढने की ज़रूरत नहीं रही। ऑफिस के साथियों पर मेरी धाक बैठ गई कि मैंने आसेब का डट कर मुकाबला किया और आसेब को ही घर से निकाल फेंका। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सकें।